Okay, so we have discussed like what is dynamic equilibrium. So I told you that rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Also, we did the graph or, and then today we are going to discuss Lee-Chatelier principle and what are the factors on which reversibility depends, like the direction of reaction depends basically. So Lee-Chatelier principle says that uh, reaction if equilibrium of any reaction is disturbed, if equilibrium of a reaction is disturbed, so reaction tends to oppose the change, tends to oppose the change. So let's suppose how can we disturb any equilibrium? How can we disturb any equilibrium? So we can change the concentration of a reaction, we can change the pressure of a reaction, we can change the temperature of a reaction, or else we can also add a catalyst. But I told you that there is no effect on equilibrium like while you are going to add a catalyst, but we have to discuss that what would the effect of adding a catalyst. So later on we would be discussing after concentration and all of this stuff. So the first factor on which the equilibrium depends, that is concentration. That is concentration. 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 Before discussing in detail, always remember that the things always travel from higher to lower. This is very important to know. Always from higher to lower. Always from higher to lower. Always from higher to lower. Higher to lower. Remember, okay? Then let's suppose this is a reaction. Let's suppose this is a reaction, okay? And I'm going to increase the concentration of nitrogen. Okay, nitrogen. So remember, if you are going to increase the concentration of nitrogen, so means that the reaction will be going from higher to lower. So means that after increasing the concentration of nitrogen, so now this is higher. This is at higher potential. So this is lower. So ultimately the reaction will be going into the forward direction until they become the same. Like, I mean to say that before increasing the concentration of nitrogen, वो दोनों बराबर थे, इक्वल थे दोनों, बिल्कुल इक्वल थे. अगर ये 50 ग्राम्स है तो ये भी 50 ग्राम्स है, let's suppose. But when I have increased the concentration of nitrogen, it means that I have increased the number of particles of nitrogen. तो आपकी जो रिएक्टेंट साइड हो गई वो हायर हो गई, हायर पोटेंशियल पे, एंड वो लोअर पोटेंशियल पर हो गया. सो अब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, यानी यूं समझ लो कि ये रिएक्टेंट हो गया और दिस इज योर प्रोडक्ट. तो ये पानी का जग है
इसमें पानी भर गया है और ये थोड़ा सा खाली है। अब ऑब्वियस सी बात है, ओके, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ पानी आता रहेगा। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक ये दोनों इक्वल इस तरह से ना हो जाए, जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। कहने का मतलब भी यही था, ली चैटलियर ने भी यही कहा कि अगर यू आर गोइंग to disturb any equilibrium of a reaction by means of concentration, by means of temperature or anything else, तो obviously the reaction will tend to oppose the chain. अब वो उसको oppose कैसे कर रहा है? अब oppose कैसे कर रहा है उसको? कि वो forward हो रहा है। फॉरवर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, चाहे वो फॉरवर्ड होके करे, चाहे वो बैकवर्ड होके करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसलिए व्हेन यू हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो आपने अपने रिएक्टेंट को हायर पोटेंशियल पे कर दिया, और जब आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया, इट मींस दैट आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा खासा वो इक्विलिब्रियम पर था रिएक्शन, आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके उसके इक्विलिब्रियम को ही डिस्टर्ब कर दिया आपने। So now the reaction will be going into the forward direction so that it may like it can get equilibrium again. It can have again equilibrium. तो इसलिए उसको फॉरवर्ड जाना पड़ा। तो अगर आपने नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, सो आई वुड राइट दैट के फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। फॉरवर्ड मींस व्हाट? के लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड मींस लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड मींस लेफ्ट टू राइट। ओके, फॉरवर्ड मींस लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अगर आप क्या करें, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया, अब बताइएगा जरा कि क्या होगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो चेंज? यस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो चेंज? बैकवर्ड, बैकवर्ड। उसकी वजह ये है कि आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जब डिक्रीज किया, तो मींस दैट ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया तो आपने उसको उसका लोअर पोटेंशियल हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ आएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक फिर वो लाइन दोबारा से इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा whether the reaction has to go into the forward direction or it has to go into the backward direction, but it would be attaining the equilibrium again. एक तो ये बात हो गई। और backward means right to left, backward means right to left। तो ये था concentration। This is what about concentration. Now we have pressure. Now we have pressure. Now we have pressure. So pressure का जो इफेक्ट है वो मोस्टली गैसेस पर होता है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसका इफेक्ट जो है वो मोस्टली गैसेस पर होता है। यानी कि लेट्स सपोज 2SO2 प्लस O2 और 2SO3। ओके, ये सारी गैसेस हैं, राइट? ये सब गैसेस हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि लेट मी टेल यू फ्यू केसेस इन अ प्रेशर। क्योंकि प्रेशर में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरफ यू हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, किस केस में मोर मोल्स ऑफ गैसेस हैं और किस में, यानी कि रिएक्टेंट में ज्यादा मोल हैं, प्रोडक्ट में ज्यादा मोल हैं, या दोनों का अमाउंट सेम है। मोल मींस अमाउंट। लाइक लेट्स सपोज कि in this reaction I have 3 moles of reactant and 2 moles of product. Like this is 2 and this is 1. जब कुछ भी नहीं होगा तो 1, coefficient is 1, so 2 plus 1 is equal to 3 moles. और इस तरफ कितने मोल्स हैं? You have 2 moles. तो अगर इस तरह का सिनारियो हुआ आपके पास कि when you have
number of moles of reactants are higher than the number of moles of product. अगर इस तरह का सिनारियो हुआ, यानी कि मोल ऑफ reactants are higher than the mole of product, तो इट मीन्स दैट ऑलरेडी आपका जो रिएक्टेंट है वो हायर पोटेंशियल पर है। यानी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, ताकि एक ग्राउंड आपका बन जाए कि हमने करना क्या है इस चैप्टर में। तो हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमें कैसे प्रेडिक्ट करनी है बेसिकली। तो अब इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, if you are going to increase the pressure of a whole system, one thing that is important to know, कि when you are going to increase or decrease the pressure, so remember ये किसी भी एक तरफ का नहीं होता है। मतलब I can't say that I'm going to increase the pressure of reactant, I can't say that I'm going to increase the pressure of a product, no। आपका जो ये रिएक्शन है, लेट्स सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, लाइक दिस सिलेंडर है कुछ इस तरह का। वैसे तो बॉटम उसकी बिल्कुल राउंड शेप की होती है, लेकिन चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसा है। सही है जी, कुछ ऐसा है आपके पास सिलेंडर आपका, और उसके अंदर आपका रिएक्टेंट भी है और उसके अंदर आपका प्रोडक्ट भी है, ये दोनों मिक्स्ड हैं इसके अंदर। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो पूरे सिलेंडर का करोगे। ऐसा नहीं होगा कि इस सिलेंडर में आप सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसलिए अब आप इसको Yeah. यूं भी समझ लो कि ये आपके पास एक बड़ा बलून है और ये आपके पास एक छोटा बलून है, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक होल हुआ है, और ये एक कंटेनर में हमने रखा हुआ है। अब जब मैं इस कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बलून पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया इसका ज्यादा है, मतलब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा इसमें, तो ये पिंच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सारी की सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों बलून का साइज सेम ना हो जाए। तो इसलिए ये एक आइडिया है हमारे पास कि व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सच अ सिस्टम in which you have the more amount of product and the less amount more amount of reactant and a less amount of product, so remember the reaction will move in forward direction, फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली बैकवर्ड हो जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। Hmm. दिस वाज केस नंबर 1, दिस वाज केस नंबर 1, this was case number 1, and then we have case number 2। then we have case number 2। केस 2 में हम ऐसी एग्जांपल लेंगे कि जिसमें you have less amount of reactant and more amount of product। तो हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज के दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। एज एन एग्जाम्पल ऐसी, चलो मैं कोई ऐसी डमी डमी इक्वेशन ले लेते हैं। 2a+b 3c+d। Now if you can see, you have 3 moles of reactant और 4 moles of product। 3 और ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। So in this case, more product and less reactant। So for that case, if you are going to increase the pressure, so remember the reaction will move in backward direction, क्योंकि अब आपका जो ये है, ये बड़ा बलून है, ये छोटा है, तो एयर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों बलून का साइज जो है वो सेम ना हो जाए। और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। हमने क्या कहा, एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा।
दैट्स इट। अच्छा, ओके, तो अब आइए मॉलिक्यूल्स आप को क्या हो? केस नंबर 3 पर। सॉरी, व्हाट विल हैपन टू द मॉलिक्यूल? molecules means what? I'm talking about direction. I'm talking about direction. Let's suppose before changing the pressure, the equilibrium was at the reaction was at equilibrium. तो you have disturbed equilibrium by means of pressure. तो अब अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहा है वो, अपने इक्विलिब्रियम को रिटेन कैसे कर रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड होके रिटेन कर रहा है, कभी वो बैकवर्ड होके रिटेन कर रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ को जाना चाहिए उसे। बात ये है असल में। ओके, सेम एज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में भी यही था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा था। प्रेशर में भी यही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा होता है वो। अच्छा, केस नंबर 3। more of reactant is equal to the mole of product. Like we have this equation. So if you are going to increase or decrease the pressure, so no change. Since it's already at equilibrium and the number of moles are same, तो आप प्रेशर का कुछ भी कर दो, उसको चेंज फर्क नहीं पड़ना। दोनों बलून का साइज अब सेम है, तो आप अगर प्रेशर अप्लाई कर भी दोगे तो ऑलरेडी दोनों का साइज सेम है, तो एयर कहीं भी नहीं जाएगी। वो रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम। सो वी हैव 3 केसेस। तो जब एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन देगा, देन यू हैव टू लुक एट द केस, तो ये किस केस की बात हो रही है और हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है। दैट्स इट। देन वी हैव टेम्परेचर। We have two types of reaction. Number one, exothermic, and endothermic. एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन, जैसे कि ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग, हम सांस ले रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो खैर अभी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट रिमेंबर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जब तक वो एनर्जी रिलीज ना कर लें, ये उनकी नेचर है। ये उनकी नेचर है कि दे हैव टू रिलीज देयर एनर्जी, they have to release their energy, remember. So after releasing energy, they will be forming the product. After releasing energy, they will be forming the product. Simple. तो अब हम क्या करें? तो let's suppose we have this reaction. Let's suppose we have this reaction which is exothermic. Haber process, or this reaction is exothermic. मतलब कि इसको रिलीज करनी है हीट, मतलब कि इसको हीट रिलीज करनी है। so when the reaction will be releasing its energy, so it would be forming the product. Ultimately it would be forming the product. Now what you are doing, basically you are going to increase the temperature of this reaction. You are going to increase the temperature of this reaction. तो ये क्या कर रहे हो आप? ये तो आप उसके ऑपोजिट चल रहे हो। reaction wants to drop the temperature by releasing its energy, and you are going to increase the temperature. मतलब कि I gave you a cup of hot tea, so और आपने उसको कप को उस रूम में रख दिया, उस temperature is very high, higher than the cup of tea.
So do you think that your hot tea would be cooler soon? No, it would not get colder despite you are going to give, like you are going to wait, okay, for a since long. So no, because you have to decrease the temperature of your room. If the temperature would be decreasing, so yes, it means that, okay, again I told you that the things come from higher potential to a lower potential. So if a cup of hot tea is having a higher temperature, so it would be releasing some energy until it would be coming to the room temperature. So everything wants to have a room temperature, so that is more stable form. तो इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा. बट द थिंग इज कि आपने उसको इस जगह पे रख दिया कि वो अपनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पा रहा. मतलब कि आप एक बलून में full of water, a balloon is full of water, and just you are swimming in a swimming pool, और आपने बिल्कुल पानी में ले जाके उस बलून में होल कर दिया. सो डू यू थिंक दैट कि वहां से वाटर निकल जाएगा? नो, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वाटर का. सो ऑलवेज द थिंग कम फ्रॉम हायर टू लोअर, नॉट लोअर टू हायर. तो कुछ भी नहीं होगा उसे. हाँ, बाहर ले आओ, फिर देखो पानी कितनी स्पीड से निकलता है वहां से. तो for exothermic system where the reaction wants to decrease its energy, where the reaction wants to release its energy, where the reaction wants to drop its temperature, you are going to increase the temperature. So means that तो वो रिएक्शन बजाय उसके होने के क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा. मतलब आपने कप ऑफ हॉट टी को गरम गरम रूम में जाके ले जाके रख दिया, तो अब आप सोच रहे हो कि चाय का कप ठंडा हो जाएगा? नेवर, नेवर. वो और भी गर्म हो जाएगा. तो वो बैकवर्ड हो रहा है बेसिकली. मैंने क्या कहा था, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा. डिक्रीज करने से क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड होना चाहिए. मतलब कि आपने गरम गरम चाय के कप को फ्रीजर में जाके रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन के तुम फेवर में चल रहे हो. तुमने तो उस रिएक्शन को और हेल्प कर दी उसकी, क्या और एनर्जी रिलीज करो, तुमने एक बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया उसे. क्या कहते हो? है ना? तो दिस इज द रीजन कि फॉर एक्सोथर्मिक सिस्टम इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, और डिक्रीज द टेम्परेचर में फॉरवर्ड हो जाएगा. What about endothermic system? For endothermic, let's suppose we have equation के calcium carbonate, calcium oxide plus carbon dioxide. This is endothermic reaction, energy is absorbed. And if you are going to increase the temperature of such a system, ओहो, वो तो पहले ही टेम्परेचर का भूखा है. वो तो एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को. वो तो बेचारा, वो तो वो तो टेम्परेचर सीकर है. It needs temperature so that it may form more and more amount of product, more yield. It would be forming more yield, more product after absorbing energy. Like you are going to help, you are Yield going to means help basically. product. Yield means amount of product. So temperature increase करने से अब आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से अब आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा है. और इसी तरह से क्योंकि एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक वांट्स टू, like you can say, increase the temperature. It has to gain energy, it has to absorb energy. तो आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. सो फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, यानी कि इसका रिवर्स, इसका रिवर्स. टेम्परेचर ड्रॉप करोगे तो बैकवर्ड. सिंपल इज दैट. सो इन द टॉपिकल पेपर्स यू विल सी कि वो मेंशन कर रहा होगा कि आपको कौन सा केस यहाँ पर लगाना है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन. सो ऑल द थिंग्स यू विल बी गिवन, यू विल बी गिवन. ओके, तो ये है सिनेरियो. एंड द लास्ट वन इज कैटलिस्ट. Catalyst, let's suppose I have this reaction
In this reaction, we use this catalyst B2O5, vanadium pentaoxide, that is solid. तो याद रखो कि the job of catalyst is to change the rate, not equilibrium. Like I'm telling you that this reaction is going into the forward direction so as to form more amount of product, and it's taking 5 minutes to form more amount of product. It's taking 5 minutes in total, and then I have added a catalyst. Basically I have added the catalyst. Okay, तो अब भी वो फॉरवर्ड ही होता रहेगा, याद रखिएगा, अब भी वो फॉरवर्ड होता रहेगा. इट डजंट मीन दैट कि वो मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. नो, नेवर. वो अभी भी फॉरवर्ड होता रहेगा, अभी भी फॉरवर्ड होता रहेगा. बट रिमेंबर कि पहले वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था इन 5 मिनट्स, अब वो रिएक्शन हो जाएगा 2.5 मिनट्स में. मतलब कि आपके कैटलिस्ट ने decreased the time of reaction and increased the rate of reaction. This is a job of catalyst. Catalyst will never change. Catalyst will never change the direction of reaction. Remember, it's not going to change the direction of a reaction. So इसलिए catalyst has no effect on equilibrium. Only affects the rate. Okay, only affects the rate. Yes, these are the topical papers related to this topic. So see this question number 26. Which change would move the position of equilibrium to the left? Or this is contact process. Delta H is negative, which means that this is an exothermic system. Okay. Series times. Why? Why? Because if the reaction is exothermic, it will require and be Yes, इसको and left पे with जाना है ना? Yes. देखो लेफ्ट पे जाना है इसे, लेफ्ट. अगर अगर ये एंडोथर्मिक होता तो इंक्रीज करने से फॉरवर्ड हो जाता, लेकिन ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट पे चला जाएगा. अब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बजाय लेफ्ट और राइट को टर्म यूज कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, एक ही बात है. तो a reversible reaction involves a solid reacting with hydrogen. Which of the metals, aluminium and iron, would catalyze the reaction, and what is their effect on the position of equilibrium? So solid reacting with hydrogen, or which of the metals, aluminum and iron, would catalyze the reaction? एक बात आपको मैं बताऊं कि you have studied the periodic table. So in that chapter we know that, like we have learned, transition metals can be used as a catalyst. Transition metals can be used as a catalyst. So aluminium is not a transition element, so iron is a transition element, so it can be used as a catalyst. You have two options, C and D, and they are saying that position of equilibrium. So remember, catalyst has no effect on equilibrium, I told you.
a catalyst will increase or decrease the rate of reaction. So that's why ये और ये correct, यानी कि D option is the suitable answer. बात समझ आ रही? Okay. Now see this. Yes. See, obviously repeated question है ये भी repeated question है. ये देखिएगा जरा. Question 21. Yes. 32. ये भी हो गया. 21. C. क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है बेसिकली. यस गुड. 18. 18. A. Sorry. A. Yes, exactly. See this. ये भी छोड़ो. 25. ये हेबर प्रोसेस क्या होता है? Which option is correct? What is Haber process? ये रिएक्शन का नाम है. A. A. So C. A. A. Okay. The forward reaction is exothermic. Okay. So means that they are saying this is an exothermic reaction. Yes. So which statement about the Haber process is correct? A low pressure is used. A low pressure, high pressure करोगे तो forward हो जाएगा. A low pressure is used to shift the position of equilibrium to the right. No, this is incorrect. High pressure will, you can say, change the position of equilibrium to the right because higher to lower. It's higher to lower. A is incorrect. Yes, now think another thing. Then B. D. D for doctor. B. B for B ball. for ball. Okay. Okay. A high temperature is used to shift the position of equilibrium to the right. Wrong. This is exothermic system. Exothermic system that you are going to increase the temperature, so the reaction will move in the backward direction. This is wrong. Then D. The nitrogen used is obtained from the air. An iron catalyst is used to shift the position. Yes, exactly this. Good. Because catalyst का तो कोई effect होता ही नहीं है, वो change the position की बात कर रहा है. Yes, good. बड़ा confusing था. फजूल सी ऐसे ही है, option. ऐसे ही है. Okay, 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 okay. Yes, yes, yes. Yes, see this. 17.
Sorry, D. D for doctor. Okay. 2 and 3 adding, they are saying okay, this is solid. Solid means this is precipitate, white PPT. So which change increase the mass of means forward reaction. यानी कि किस चेंज से व्हाइट पीपीटी बन रही है, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है रिएक्शन, जाहिर सी बात है. एडिंग मोर वाटर. ओके, यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मोर वाटर मींस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑब्वियसली फॉरवर्ड होगा. और Forward kiss. एडिंग एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड. एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये आपका NaOH अल्कली होगा. इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद दिस, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन होता है ऑब्वियसली. तो ये NaOH क्या करेगा, इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा, तो मतलब फिर भी फॉरवर्ड होगा. एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो तो बैकवर्ड हो जाएगा. नो, तो 1 and 2 मींस A इज करेक्ट. I didn't understand. देखो, ये कौन सा एडिंग मोर चैप्टर? वाटर का मतलब ये चैप्टर? इक्विलिब्रियम ही है ना भाई, अभी तो पढ़ाया है. क्या मतलब कौन सा चैप्टर है भाई? देखो इसमें आप सिनेरियो को देखो, वो आपसे पूछ क्या रहा है. अब इस तरह के क्वेश्चन तो बेशुमार आएंगे भाई, कभी क्या सिचुएशन आपको दे देगा, कभी क्या दे देगा वो. तो इसलिए आप फोकस इस पे करो कि अब मिसाल के तौर पे वो आपको कह रहा है एडिंग मोर वाटर, तो मतलब आपने वाटर को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि यू हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड. क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yeah. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो फॉरवर्ड हो जाएगा. कंसंट्रेशन के केस में मैंने आपको बताया. तो फॉरवर्ड का मतलब आपके पास ये ज्यादा बन गया. वो यही तो कह रहा था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो बन गया प्रेसिपिटेट, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रेसिपिटेट भी बनेगा. फिर वो कह रहा है एडिंग एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है ये, यानी कि ये जो NaOH है बेसिकली इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद दिस HCl. Always there is a neutralization reaction that's going to take place. Acid based reaction. तो जब acid based reaction होगा तो आपका जो HCl का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ गया, ये NaOH ने रिएक्ट कर दिया इसके साथ, तो इसका मतलब HCl कम हो गया. जब NaOH ने रिएक्ट कर लिया इसके साथ, इसका मतलब ये है कि HCl कम हो गया. कहाँ गया HCl? NaOH के साथ रिएक्शन करके उसने प्रोडक्ट बना लिया. तो हमारे रिएक्शन से तो कम हो गया ना, बिल्कुल हुआ रिएक्शन से कम. सो इट मीन्स दैट कि आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया. इट मीन्स दैट आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज, और जब आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया तो मीन्स के फॉरवर्ड हो गया. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज का मतलब आपने प्रोडक्ट लोअर पोटेंशियल पे आ गया, रिएक्शन हायर पोटेंशियल पे आ गया, तो मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा. फॉरवर्ड का मतलब एक दफा फिर आपका ये बनेगा. लेकिन 3 में वो क्या कह रहा है, एडिंग HCl. भाई जब आप HCl की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो मतलब आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो, तो बैकवर्ड हो जाएगा. बैकवर्ड होगा तो आपका मोर रिएक्टेंट बनेगा, ये तो नहीं बनेगी ना व्हाइट पीपीटी. तो इसलिए ये दोनों केसेस ऐसे हैं जो आपके रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं और दे आर गोइंग टू फॉर्म मोर व्हाइट पीपीटी. तो ये हैं क्वेश्चंस. बात समझ आ रही है? तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको.